ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ وقف امینڈمنٹ ایکٹ کے خلاف دیش بھر میں احتجاج کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے بھی روڈ میپ جاری کر دیا کہ کس طرح احتجاج کرنا ہے، کیا طریقہ کار ہوگا۔ پوری تفصیل ایک ویڈیو میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ دیش کے کئی ریاستوں میں، کئی علاقوں میں لوگ سڑکوں پر آ چکے ہیں۔ کیرلا میں کالیکٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو عیسائیوں نے بند کر دیا اور تاریخی احتجاج مانا جا رہا ہے۔ بنگال میں زبردست احتجاج ہو رہا ہے۔ ممتا بنرجی کو جھکنا پڑا مظاہرین کے سامنے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ اب یہاں یہ قانون نافذ نہیں ہوگا۔ منی پور سے احتجاج کی خبریں سامنے آ رہی ہے، کرناٹکا سے آ رہی ہے، تمل ناڈو سے سامنے آ رہی ہے۔ اس بیچ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ احتجاج ہوا تو اس سے بی جے پی کو فائدہ ہوگا، مسلمانوں کا نقصان ہوگا، اس لیے سڑکوں پر نہیں اترنا چاہیے۔ کچھ لوگ مضبوطی کے ساتھ قانونی لڑائی لڑنے کا مشورہ دے رہے ہیں اور دو نام اہم ہیں جن کا میں یہاں ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ ایک ہے جسٹس مارکنڈے کاٹجو۔ جسٹس مارکنڈے کاٹجو سپریم کورٹ آف انڈیا کے جج رہے ہیں۔ مسلمانوں میں ان کی مقبولیت ہے، ان کی اہمیت ہے، کئی سارے مدعوں پر کھل کر بولتے ہیں۔ اب جسٹس مارکنڈے کاٹجو کا کہنا ہے کہ اگر مسلمانوں نے سڑکوں پر اترنا شروع کر دیا تو اس سے بی جے پی کا ہی فائدہ ہوگا۔ ادھر مشہور صحافی اور روزنامہ راشٹریہ سہارا کے سابق گروپ ایڈیٹر ڈاکٹر عزیز برنی کا بھی ایک بیان آیا ہے۔ دراصل اپنے فیس بک پیج پر انہوں نے ایک تحریر لکھی ہے اور اس میں مشورہ دیا ہے کہ وقف امینڈمنٹ ایکٹ کی جو لڑائی ہے ہمیں کیسی لڑنی چاہیے، کیا طریقہ کار اپنانا چاہیے۔ انہوں نے کیا کچھ کہا وہ آگے بتائیں گے، اس سے پہلے جسٹس مارکنڈے کاٹجو کا کیا کچھ کہنا ہے۔ دراصل ان کا ایک بیان اردو نیوز پیپر میں شائع ہوا۔ اپنے فیس بک پر بھی مارکنڈے کاٹجو نے اس اسٹیٹمنٹ کو شیئر کیا جس میں وہ کہتے ہیں کہ مظاہروں سے بی جے پی کو فائدہ ہوگا۔ مارکنڈے کاٹجو کا کہنا ہے کہ وقف ترمیمی ایکٹ کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے، بہت ساری درخواست دی گئی ہے۔ سپریم کورٹ میں کیا ہوگا نہیں ہوگا، اس قانون کو کس طرح وہاں دیکھا جائے گا، اس پر بعد میں بات ہوگی۔ اس پر میں نہیں کہنا چاہتا کچھ بھی، لیکن جس طرح اس کے خلاف لوگ دھرنا دے رہے ہیں، پروٹیسٹ کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، سڑکوں پر اتر رہے ہیں، تو اس سے بی جے پی کا ہی فائدہ ہوگا۔ بی جے پی کو جو کرنا تھا بی جے پی کر چکی ہے اور مسلمان بی جے پی کے جال میں پھنس چکے ہیں۔ کیا کچھ مارکنڈے جسٹس کاٹجو کا بیان ہے، اس کو سنیے۔ وقف ترمیمی ایکٹ مسلمانوں کے لیے مکمل طور پر غیر متعلق ہے کیونکہ اس کا ان کی زندگیوں پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، جس طرح دفعہ 370 کی منسوخی کا کشمیریوں کی زندگی پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ اس بل کا مسلمانوں کی سماجی اقتصادی حالت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ یہ غربت، بے روزگاری، غذائی قلت، مہنگائی، صحت کی دیکھ بھال یا اچھی تعلیم کی کمی وغیرہ کو نہ تو کم کرے گا اور نہ ہی بڑھا سکے گا۔ جسٹس مارکنڈے کاٹجو کے بیان کے ہائی لائٹ ہے جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس بل کے خلاف مسلمانوں کو احتجاج نہیں کرنا چاہیے اور اگر مسلمان سڑکوں پر اتریں گے وقف قانون کا وروध پردرشن کرنے کے لیے، اس کے خلاف احتجاج درج کرانے کے لیے، تو بی جے پی کا فائدہ ہوگا۔ اور مسلمانوں کو مشورہ بھی دے رہے ہیں کہ ان کو احتجاج نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس قانون سے عام مسلمانوں کی زندگی متاثر نہیں ہوگی، اس بل سے عام مسلمانوں کی تعلیم پر اثر نہیں پڑے گا، ان کی غربت کم نہیں ہوگی، تو اس کے خلاف احتجاج کیا کرنا۔ وہ مثال دے کر سمجھا رہے ہیں کہ جس طرح کشمیر سے آرٹیکل 370 کو ہٹایا گیا اور اس کا وہاں کے مسلمانوں کی زندگی پر کچھ بھی اثر نہیں پڑا، تو اس کا بھی کچھ بھی اثر نہیں پڑ سکتا ہے۔ تو پھر اس قانون کی مخالفت کیوں، اس قانون کے خلاف سڑکوں پر وہ کیوں اتر رہے ہیں، یہ مارکنڈے کاٹجو کہہ رہے ہیں۔ اس پر آپ کا کیا تبصرہ ہوگا ضرور لکھے گا، لیکن میرا تو ماننا یہ ہے کہ مارکنڈے کاٹجو صاحب کی یہ جو سوچ ہے غلط سوچ ہے۔ اس قانون کا سیدھے سیدھے اثر عام مسلمانوں کی زندگی پر ہوگا، عام مسلمان اس سے افیکٹس ہوں گے کیونکہ ایک مسلمان کے لیے اہم صرف یہ نہیں ہے کہ ان کی غربت دور ہو جائے، وہ تعلیم حاصل کرے، بلکہ ایک عام مسلمان کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے مذہب سے جڑے رہنا، اپنے مذہب پر عمل کرنا، اور مذہبی انسان کو، مسلمانوں کو سکھاتا ہے کہ اسے تعلیم بھی حاصل کرنی ہے، غربت کا بھی خاتمہ کرنا ہے، اچھے معاشرے میں رہنا ہے، اچھی تہذیب اور ثقافت کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ تو یہ مذہب سکھاتا ہے، یہ اسلام سکھاتا ہے۔ ایک مسلمان کا مذہب کے بغیر جینے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اور یہ جو قانون ہے اس کا سیدھے ایفیکٹ پڑے گا مسلمانوں کے مذہب پر، مسلمانوں کی املاک پر، مسلمانوں کی تعلیم پر۔ اس قانون کے بعد ممکن ہے بہت ساری قبرستانوں کے بارے میں دعویٰ کیا جائے کہ گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے، بہت ساری مسجدوں اور درگاہوں کو دعویٰ کر کے کہا جائے کہ یہ حکومت کی سرزمین پر بنا ہوا ہے۔ وقف با یوزر کو ختم کرنے کی بات کی گئی تھی ایک میں، لیکن مکمل طور پر اس میں ترمیم نہیں کی گئی۔ ترمیم کرتے ہوئے صرف اتنا کہہ دیا گیا کہ جو برسوں سے قبرستان اور مسجد کی زمین ہے، وہ قبرستان اور مسجد کی
ज़मीन ही रहेगी। लेकिन अगर उस पर कोई इख्तलाफ है, उसका कोई तनाज़ो है, कोई केस चल रहा है, तो फिर उसके लिए सबूत दिखाना होगा, या हुकूमत की अगर वो ज़मीन है तो फिर वो हुकूमत की ज़मीन मानी जाएगी, तो एक बड़ा ख़तरा है। उसके अलावा ये मुसलमानों का मजहबी मामला है, शरई मामला है, इसमें नॉन मुस्लिम्स को मेंबर क्यों बनाया जा रहा है? जिस तरह गुरुद्वारा बंधक कमेटी में या हिंदुओं के जो ट्रस्ट बने हुए हैं उनके जो औकाफ का मामला है, वहाँ जब मुस्लिम्स मेंबर नहीं होते तो यहाँ उनको क्यों मेंबर बनाया जा रहा है? इसके अलावा मार्कंडेय काटजू ये कह रहे हैं कि मुसलमानों की तालीम दूर नहीं होगी, मुसलमानों की गुर्बत दूर नहीं होगी। ये भी गलत है। अगर औकाफ की प्रॉपर्टीज़ का सही इस्तेमाल किया जा सकता है तो मुसलमानों के कुछ स्कूल बन सकते हैं, कुछ कॉलेजेस बन सकते हैं, मुसलमानों का कुछ भला हो सकता है। लेकिन अगर आप इसको सिरे से नज़रअंदाज कर देंगे, अपनी प्रॉपर्टीज़ को छोड़ देंगे, हुकूमत को कब्ज़ा करने देंगे, तो जो आपके आबाओ अजदाद की जायदाद थी, जो विरासत थी, वो भी आपसे ख़त्म हो जाएगी। जस्टिस काटजू कह रहे हैं कि मेरे ख़्याल में मुसलमानों के एहतजाज और मुजाहरे नामुनासिब हैं। इन मुजाहरों से सिर्फ बीजेपी की मदद होगी, क्योंकि उनके रद्द अमल के तौर पर हिंदू, जो कि हिंदुस्तान की तकरीबन 80% आबादी पर मुश्तमिल है, अब बीजेपी के पीछे और मजबूती के साथ खड़े होंगे। इस तरह आने वाले इंतखाबात में उसकी जीत को यकीनी बनाया जाएगा। बिहार में जल्द ही इलेक्शन होने वाले हैं। बीजेपी इसके सहारे वहाँ जीतने की कोशिश करेगी। मेरी ज़ाती राय है कि वक्फ तरमीमी एक्ट मुकम्मल तौर पर गैर मुतल्लिका है, जैसा कि आइन का आर्टिकल 370 को मनसूख करना इंतहाई गैर मुतल्लिका अमल था। हर सियासी सरगर्मी या सियासी निज़ाम को रखने की कसौटी एक ही होती है। क्या उससे लोगों का मेयार ज़िंदगी बुलंद होता है? क्या ये उन्हें बेहतर ज़िंदगी देता है? दूसरे लफ्ज़ों में, क्या उससे गुर्बत, बेरोज़गारी, भूख, महंगाई दूर होती है और सेहत की देखभाल और अच्छी तालीम मैसर होती है? एक बार जब हम इस ख्याल को जहन में रखें तो वाज़ेह हो जाता है वक्फ तरमीमी एक्ट मुसलमानों के लिए मुकम्मल तौर पर गैर मुतल्लिका है, क्योंकि इसका उनकी ज़िंदगियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जिस तरह दफ़ा 370 की मनसूखी का कश्मीरियों की ज़िंदगी पर कोई असर नहीं पड़ा, इस बिल का मुसलमानों की समाजी इक़्तिसादी हालत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस तरह की बातें मार्कंडेय काटजू कह रहे हैं। उधर डॉक्टर अजीज़ बरनी ने अपने फेसबुक पेज पर लिखकर मुसलमानों को मशवरा दिया कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे लोगों ने मुकदमा दायर किया है, ये अच्छी पहल है, लेकिन जितने लोगों ने पिटीशन दायर की है उन सब की एक कमेटी बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट में पेश होने से पहले वो सब आपस में बैठे मीटिंग करें और एक ही लाइन इख्तियार करें। ऐसा ना हो कि सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग जो फ़रीक बने हैं लोग, तो सबके वकला अलग अलग अंदाज में बहस करें, अलग अलग राय को इख्तियार करें, तो उससे क्या होगा, केस कमज़ोर होगा और चीफ जस्टिस को या जो बेंच सुनवाई करेगी उनको समझ में आएगा कि ख़ुद मुसलमानों में इत्तेफाक राय नहीं है, ये अलग अलग अंदाज से इस बिल पर बहस कर रहे हैं, तो उनका ये जो मशवरा है मुनासिब है। उसके अलावा डॉक्टर अजीज़ बरनी का ये भी कहना है कि एक एडवाइज़री कमेटी बनाई जाए, तमाम लोग मिलकर मशवरा करें। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में मजबूती के साथ मुकदमा लड़ने के साथ साथ ज़रूरी है कि सेमिनार हो, एहतजाज हो, रैलियाँ हो, जलसे हो, इस तरह के प्रोग्राम का इनेकाद भी किया जाए। उनका यह भी कहना है कि जिन लोगों ने औकाफ की प्रॉपर्टीज़ पर कब्ज़ा कर रखा है, यानी बहुत सारे मिल्ली रहनुमा ऐसे हैं जिन्होंने ख़ुद वक्फ की प्रॉपर्टीज़ पर कब्ज़ा कर रखा है, लोगों को ये बातें मालूम है, तो उन्हें चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट में इस मुकदमा को लेकर के ना जाएं, वो इस मामले से दूर रहें, औकाफ की लड़ाई में शिरकत ना करें। हाँ, वो मिल्ली रहनुमा जिन्होंने औकाफ की प्रॉपर्टी पर कॉलेज बना रखा है, स्कूल बना रखा है, या ऐसा इदारा खोल रखा है जो मिल्लत के फ़ायदे के लिए, जो कौम के फ़ायदे के लिए है, तो उनको आगे लाया जाए, इसको हाइड किया जाए कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी का सही इस्तेमाल हो रहा है। तो इस तरह के मशवरे डॉक्टर अजीज़ बरनी ने भी दिए हैं। आपकी क्या राय है? ख़ासतौर पर मार्कंडेय काटजू का जो अंदाज़ है, उन्होंने जिस तरह की बातें की है, मुसलमानों को जिस तरह का वो मशवरा दे रहे हैं कि उन्हें सड़कों पर नहीं उतरना चाहिए, उन्हें प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए, इसको आप किस नज़रिया से देखते हैं? कि आपको लगता है कि मुसलमानों को एक तरह से एहतजाज करने से रोकने की कोशिश है, मुसलमानों को ये समझाया जा रहा है कि वो प्रोटेस्ट ना करे, क्योंकि प्रोटेस्ट करने का कहीं ना कहीं असर तो होता है। सी और एनआरसी के खिलाफ जब मुसलमानों ने एहतजाज किया था, मुसलमानों ने प्रोटेस्ट किया था, तो उसका असर दिखा था। साफ लफ्ज़ों में आप ज़रा फ़र्क महसूस कीजिए, सीए के कानून को नोटिफाई किया हुकूमत ने 5 सालों के बाद, यानी 2024 के लोकसभा इलेक्शन से कुछ ही दिन पहले।
हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी किया और सीए कानून को नाफिज किया गया। 5 साल तक इसको नाफिज नहीं किया गया। और एहतजाज अकेले सीए के खिलाफ नहीं था, बल्कि सीए के साथ एनआरसी के खिलाफ भी एहतजाज था। सीए उस वक्त ज़्यादा खतरनाक हो रहा था जब एनआरसी को भी लाया जा रहा था कि सीए पहले एनआरसी के ज़रिए मुसलमानों की शहरियत ख़त्म की जाएगी, फिर सीए के ज़रिए नन मुस्लिम को शहरियत दी जाएगी और मुस्लिम की शहरियत के दरवाजे बंद किए जाएंगे। तब मुसलमान सड़कों पर उतरे, एहतजाज का सिलसिला शुरू किया उन्होंने और 5 साल के बाद सीए को नाफिज किया। और एनआरसी लाने का जो मंसूबा था हुकूमत का, अमित शाह का, उस मंसूबे को इनको रिजेक्ट करना पड़ा। बहुत बुलंद आवाज़ के साथ अमित शाह लोकसभा में बोल रहे थे कि एनआरसी हम कराएंगे, हर हाल में एनआरसी होगी, लेकिन इसका विरोध हुआ और हुकूमत को पीछे हटना पड़ा। तो जो एहतजाज हुआ था उसका नतीजा तो देखने को मिला। वक्फ कानून के खिलाफ इस तरह का इन्होंने अभी तक एहतजाज नहीं किया और अब मुसलमानों को मशवरा दिया जा रहा है कि एहतजाज करेंगे तो बीजेपी का फ़ायदा होगा। वैसे तो हर मामले में ही बीजेपी फ़ायदा उठा लेती है। बीजेपी मुसलमानों को जाल में फंसाना चाहती है, तो क्या अब मुसलमान सड़कों पर ना उतरे, मुसलमान प्रोटेस्ट ना करे, मुसलमान एहतजाज ना करे, मुसलमान पीछे हट जाए? ये भी बहुत अहम मौजू है। वैसे मुसलमानों ने एहतजाज का सिलसिला तो शुरू कर रखा है। इमारत शरिया ने भी मीटिंग करके बिहार में एहतजाज करने का फैसला किया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का रोड मैप जारी हो चुका है। जमीयत उलमा हिंद के एक ग्रुप की तरफ से खामोशी है, दूसरे ग्रुप ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा को लेकर के जाएंगे, लेकिन सड़कों पर नहीं उतरेंगे, प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। हाँ, बंद कमरे का, ऑडिटोरियम का इजलास और सेमिनार उनकी तरफ से किया जाएगा। तो एक अलग अलग राय है, लेकिन मुत्तफ़िक़ा तौर पर पूरी उम्मत मुस्लिमा, पूरी जो कौम है वो इस वक्फ कानून के ख़िलाफ़ है। वो इस वक्फ कानून को मुसलमानों के मज़हब में, मुसलमानों की शरीयत में मुदाखलत मानती है और साफ कहना है कि हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे जिस तरह दूसरे लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से तो पूरी तैयारी की जा चुकी है। जुमा का खुतबा क्या होगा मस्जिदों का, वो खुतबा भी इमामों को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से अब दिया जा रहा है कि किस तरह अवेयरनेस फैलाना है, किस तरह आवाम को बातें बतानी है कि जो कानून है हमारे खिलाफ है और इसका आम मुसलमानों की ज़िंदगी पर असर पड़ने वाला है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आज़ाद मीडिया हाउस और कमज़ोरों की आवाज़ है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।